Good evening, guys. A very good evening to all of you. So, welcome to the part 12, guys, for the formula revision series of CRE, especially for the students who are going preparing for GATE 2025 exam. In this part 12, we are going to talk about the RTD for different type of reactors. This is short notes come formula revision series. In last part 11, we discussed about the pulse input and step input methods. RTD for RTD analysis, what parameters we can use and how we can calculate them. Now we are going to talk about the RTD for reactors and reactor arrangements. So with this, our discussion on all these topics will be completed. Okay, so this is the part we have discussed in this series. So today we are going to talk about the RTD for reactors. RTD for reactors means basically, as I told you, E curve. That means E curve. E curve we have to find out. Okay. What will be the E curve for various type of reactors, especially for the pulse input experiment. So in this, we are going to discuss about the individual reactors like batch reactor, CSTR, PFR, and then the reactor arrangements, or you can say multiple reactors, either in series or in parallel. So I hope you guys are ready. So let's start the discussion. So first, we are going to talk about the RTD for batch reactor. For batch reactor, what is the mechanism? In batch reactor, we introduce the react all the feed mixture in the reactor at time t equal to 0. We charge the feed mixture actually. It's not the continuous input. Okay. We introduced at time t0, and then we wait. We keep the reaction mixture inside the tank till time t to achieve the desired conversion XA. And after that, we take out the entire reaction mixture in one shot, or you can say in one go.
So ultimately, if you see logically, all molecules are entering at T0 and leaving at T. So all molecules have same residence time. So that's why we treat batch reactor as an ideal reactor. I hope it is clear. Next, we will talk about the RTD for CSTR. ये भी आपने पढ़ा होगा. In case of CSTR, what we do, there is a react MFR, there is a CSTR. We introduce the feed continuously at volumetric flow rate V naught, and we are supposed to get the product mixture at the same flow rate at steady state. Okay, so here we introduce the tracer in the form of pulse input, and if you have to know the profile, so you know the profile will be something like this for the pulse input. Concentration of tracer introduced is C naught. C naught concentration, or you can say it is the initial concentration of tracer introduced in the MFR at time t equal to 0. And here at different time interval, we measure the samples, we collect the samples, we find out the concentration of tracer at different time, you know. And when you do that analysis, so you get the equation something like Ct is equal to C naught into e to the power minus t by tau m, where you can say tau m is the design space time of given CSTR. Okay, you know all the methods. We are not doing derivation and stuff since it is formula revision. If anyone has any doubt like why it happens and how it happens, so you can discuss. Otherwise, you can attend the crash course which we are starting from 11th November for CRE. Now, if you draw this equation on a graph, so you know that at time t equal to 0, concentration of C will be equal to C naught. And as time progresses, you can see this concentration will decrease exponentially. And this is what exit concentration of tracer versus residence time. So this is what we call C curve. You know that. And यहाँ MFR में भी ये point होगा. मेरा एक question है आप सभी से. Suppose if I draw a graph between this, इसकी बात नहीं कर रहा है. Sorry, क्वेश्चन अभी मैं आगे पूछूंगा. ये आपका C कर्व हो गया और इसकी हेल्प से आपको पता है ET क्या होता है. ओके, ये हमने डिस्कस नहीं किया था. मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ. लास्ट पार्ट में आई थिंक ये डिस्कशन रह गया था हमारा. हमने देखा था एग्जिट एज फंक्शन आता है हमारा वी नॉट टाइम्स ऑफ सी टी ओवर एन नॉट. ओके, एंड फ्रॉम द मटेरियल बैलेंस, if you do the if you solve the equation, you will get Et equal to Ct over integration from 0 to infinite of Ct into dt, where this term represents the total area of C curve, or you can say area of C curve in total time interval, which will be constant. You know that because C area of C curve, Ct is the exit value and exit values are constant. जो भी आउटपुट आपको मिलेगा वो तो कांस्टेंट है ना. आउटपुट की वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती.
एक बार आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, you got the output and output will be constant. So when you draw the graph with the help of those output values, it will have constant parameters. So this is area of C curve is going to be constant in total time interval. Okay, and यहाँ पे आपको याद होगा हमने डिस्कशन किया था मीन रेजिडेंस टाइम का. ई बार ई कर्व की हेल्प से वो इक्वेशन आई थी आपकी फ्रॉम फर्स्ट मोमेंट ऑफ आरटीडी लाइक दिस. ओके, एंड इसमें अगर आप ईटी की ये वैल्यू रिप्लेस करते हो, दिस वैल्यू इफ यू रिप्लेस हियर, तो आपका जो टी बार है उसका एक एक्सप्रेशन ऐसा भी बन जाता है. इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट ऑफ टी इंटू सी टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट ऑफ सी टी डी टी. तो अगर आपको सी कर्व दिया है तो आप सी कर्व की हेल्प से भी डायरेक्ट टी बार कैलकुलेट कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन यूज ई कर्व फाइंड आउट द टी बार. ओके, तो इसी पॉइंट पे हम बात करते हैं. तो ई टी आपको निकालना है. तो आपको पता है ई टी इज इक्वल टू होता है हमारे पास सी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट ऑफ सी टी डी टी. वी नो दैट. तो हेयर व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ सी टी एंड सॉल्व, तो आपका जो ई टी आता है वो कुछ इस तरह से आता है. And when you will draw this ET, so you will get the E curve. And you know the nature of E curve is going to remain same as C curve. T equal to 0, this value will be 1 upon tau m and it will decrease exponentially. तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी क्लियर होंगी आई होप. ठीक है, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. RTD फॉर MFR के लिए just a small reminder. First, area of E curve in total time interval will be 1. Here also वो हमेशा 1 होता है कोई भी रिएक्टर हो. सेकेंड की पॉइंट जो आपका है, it is exponential curve, you know that. E curve and C curve are exponential. Third important point, at t equal to 0, from C curve, maximum value of Ct will be equal to C naught, the initial concentration. And from E curve, at t equal to 0, the maximum value will be equal to 1 upon tau m. And tau m is what? You know that tau m is nothing but t equal to t bar for CVRS, mean residence time. तो आपको CSTR में अगर E कर्व दिया है तो आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लो t इक्वल टू 0 पे. दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई tau m और यू कैन से 1 बाई t bar. So with the help of that you will be able to get mean residence time. So I hope it is clear. Okay, these are the some key points of our MFR. आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं RTD फॉर PFR. So in case of PFR, I hope you remember. Let's say the space time is tropy, which will be equal to T bar. Here we introduce the feed at volumetric flow rate V naught, and here we are supposed to get the product at same flow rate at steady state.
तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, when we introduce the tracer in the form of pulse, it will be something like this: pulse input, and at the outlet you are supposed to get the प्रोफाइल। तो यहाँ पे जो आरटीडी प्रोफाइल है, अब सीटी हो या ईटी हो, कुछ भी हो, लेट से हम सी की बात कर रहे हैं पहले, ये कंसंट्रेशन ही है, तो कंसंट्रेशन की आप बात करते हो, तो इन केस ऑफ पीएफआर क्या हो रहा है? सी, पीएफआर में यू नो दैट देयर इज नो डेड जोन, नो बाईपासिंग, नो टर्बुलेंस, सो कोई बुराई ही नहीं है, द कॉजेज ऑफ नॉन आइडियलिटीज आर नॉट देयर। तब आपने कोई रिएक्टर चूज किया जिसमें आपके कोई भी नॉन आइडियलिटी का कॉज नहीं है, आप क्या कहोगे? You will say that it is acting like an ideal reactor, है ना? आप कोई पार्टनर भी चूज करते हो और आपके जो क्राइटेरिया हैं वो अलग चीज है, बट आपके जो पॉइंटर्स हैं कि ये नहीं होने चाहिए, रेड फ्लैग्स, तो अगर वो आपको किसी पर्सन में नहीं दिखते हैं, तो फर्स्ट थॉट विल बी ही कुड बी द सोलमेट और शी कुड बी द सोलमेट। सेम हियर, दिस पीएफआर कुड बी द सोलमेट, मींस आइडियल रिएक्टर, क्योंकि कोई नॉन आइडियलिटी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बट इफ यू लुक हियर, जब कोई कमी नहीं है, आइडियल रिएक्टर है, तो क्या होगा? इट इज एक्टिंग एज एन आइडियल रिएक्टर। Of ideal reactor है, तो you know that the molecules which will enter at first place will leave at first, and the molecules which will enter at last will leave at last। मतलब ये मॉलिक्यूल पहले एंटर कर रहा है, पहले लीव करेगा, ये बाद में एंटर कर रहा है, बाद में लीव करेगा, तो दैट मीन्स द प्रोफाइल विल रिमेन सेम, बट इट विल, यू विल गेट द प्रोफाइल आफ्टर टाइम टॉपी। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे एंटर तो किया, बट बाहर निकलने में इतना टाइम तो लगेगा ना, ट्रेवल करने में जो डिस्टेंस है, copy space time, ठीक है? तो you can say here that PFR is doing nothing, just delaying the process। PFR just delay the process। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा आईपीसी में ट्रांसपोर्टेशन लैग, तो कुछ कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, ये बस डिले कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और इस केस में जो आपकी इक्वेशन होती है, पल्स इनपुट है, तो इनपुट क्या हो गया आपका? डेल्टा टी, उसका इनपुट फंक्शन, तो आउटपुट फंक्शन क्या होगा? देखो ये सी टी है, तो वो होगा आपका डेल्टा टी माइनस टॉपी, because it is just delaying the thing। So you know mathematics, so when there is a delay, तो t will be replaced by t minus टॉपी, तो ये जो t है ये रिप्लेस हो गया t minus टॉपी से। गॉट इट? so this is the RTD for PFR। अब C कर्व, अब इसमें अगर आपको E कर्व देखना है, तो यू नो दैट E कर्व का नेचर भी सेम होगा, जस्ट लाइक C कर्व, ओनली द मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट, तो दिस विल बी द E कर्व। तो ET जो है RTD फंक्शन, वो भी आपका कुछ ऐसा ही होगा, डेल्टा t माइनस टॉपी। ठीक है, और ये बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, एक सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ। अगर सपोज आपको कोई इनपुट फंक्शन ऐसा दिया है, इनपुट फंक्शन किसी भी प्रोफाइल का, पीएफआर के लिए, फॉर पीएफआर सपोज 3t² माइनस 2t, तो जो आपका आरटीडी फंक्शन है वो क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ t विल बी रिप्लेस्ड बाय t माइनस टॉपी, दिस, एंड प्रोफाइल विल रिमेन सेम। अगर इनपुट प्रोफाइल आपका सपोज ऐसा कुछ है, तो आउटपुट प्रोफाइल भी आपका सेम होगा। ओके, द ओनली थिंग इज देयर विल बी अ डिले ऑफ टाइम टॉपिक, दिस इज पीएफआर।
So I hope the RTD for MFR, PFR and batch reactor is clear to everyone. अब बात करते हैं RTD for multiple reactors in series और पैरेलल। तो सबसे पहले बात करते हैं RTD for PFR in series। So suppose there is a PFR in series having space time tau1 and tau2। आपने pulse input introduce किया at t equal to 0। So what will be the RTD here? So you know that PFR in series can be replaced by single PFR at isothermal condition। सिंगल PFR of equivalent volume। तो यहाँ पे RTD भी प्रोफाइल सेम रहेगी। ओके, एंड देयर विल बी अ डिले ऑफ टाइम। सिंगल PFR बन जाएगा जिसका स्पेस टाइम हो जाएगा tau1 plus tau2। सी हाउ इजी इट इज। RTD for PFR in series। I hope it is clear। Next, RTD for PFR in parallel। तो आपके पास सपोज अगर कोई दो PFR हैं जो पैरेलल में हैं, and you are sending pulse input at time t equal to 0। इसका स्पेस टाइम tau1 है, इसका tau2 है। तो आपको पता है RTD क्या होगी। फर्स्ट के केस में डिले होगा टाइम tau1 का, सेकंड में डिले होगा टाइम tau2 का, because it is PFR, just delay the thing। Okay, but if you draw this on a single graph paper, if you want to draw the entire thing in on a single graph paper, मतलब अगर आप इसे कंबाइन करके इस वाली प्रोफाइल के लिए बना रहे हो, इस स्ट्रीम के लिए अगर आप बना रहे हो, तो यू नो क्या हो जाएगा। There will be two pulse you will see, one is at tau1, one is at tau2। if tau1 is less than tau2 or otherwise tau2 is greater, तो वो पहले आएगा, tau1 बाद में आएगा, if tau2 is small। Okay, so that's how you can do the RTD for PFR in parallel। Next, RTD for PFR and MFR in series। तो यहाँ पे आपको पता है आपके दो केस पॉसिबल है। Either you can have MFR PFR followed by MFR और you can have MFR followed by PFR। तो ये भी आप लोगों ने करा होगा, ठीक है, आपको क्लियर होगा। यहाँ पे अगर हम पल्स इनपुट इंट्रोड्यूस करते हैं t0 पे, लेट्स से स्पेस टाइम इज tau p and tau m respectively for MFR and PFR, तो क्या होंगी प्रोफाइल्स, व्हाट विल बी द RTD। देखो सिंपल सा लॉजिक है। जब ये पल्स इनपुट PFR फर्स्ट केस देखते हैं, PFR में एंटर करेगा तो PFR विल डिले द प्रोसेस। तो 0 पे एंटर हुआ था, अब ये टॉपी पे लीव कर रहा है। नाउ दिस विल एंटर इन MFR। MFR में ये टॉपी टाइम पर एंटर हुआ तो ऑब्वियसली यू नो टॉपी टाइम पर ही लीव करना स्टार्ट करेगा, एंड MFR में एक्सपोनेंशियल डिके होगा। तो प्रोफाइल विल बी समथिंग लाइक दिस। अब सेकंड केस पे आते हैं। पल्स इनपुट व्हेन एंटर इन PFR, it is entering at t0, it will start leaving at t0 exponentially। now this profile will enter in PFR, तो you know PFR में क्या होगा, there will be a delay but no change in the profile। तो प्रोफाइल 0 पे एंटर हुई बट लीव करेगी टॉपी पे। तो यू कैन सी अल्टीमेटली द RTD प्रोफाइल in general when you will see, it will be something like this।
where this is the delay of time toppy. And this value at maximum will be 1 upon tau m. Correct? और इसे अगर मैथमेटिकली लिखना है तो आपको पता है MFR की इक्वेशन क्या होती है फॉर MFR? प्रोफाइल इक्वेशन होती है ET is equal to e⁻t by tau m divided by tau m. जब PFR है तो वहां पे एक डिले होगा और डिले है तो क्या करेंगे? We will replace t by the term t minus tau p. तो आप देख सकते हो when t is less than tau p in this region, nothing is leaving, so exit fraction is 0. But when t is greater than equal to tau p, यहाँ से अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा पिक्चर में, तो प्रोफाइल t will replace by tau p, it will become t minus tau p divided by tau m over tau m. तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, ये चीजें आपको मतलब क्लियर ही थी, हम बस क्विक रिविजन कर रहे हैं. दिस इज सी RTD for MFR and PFR in series. Now let's talk about the RTD for MFR and PFR in parallel. तो यहाँ पे आपको पता है केसेस, आपने पल्स इनपुट इंट्रोड्यूस किया एट टाइम t equal to 0 and there is a arrangement, one parallel arrangement. In one section we have MFR, in another section we have PFR. So when this stream only getting split, the profile will remain same. Okay, when this will enter in MFR at t0, it will start to leave exponentially at t from t0 itself, and when this will enter in PFR, there will be a delay. Okay, so that's how the RTD for MFR and PFR you can draw, which are in parallel. And when you try to draw that on a single graph paper, so you know that because of MFR, it will be having exponential decay, something like this. And because of PFR, it will be leaving as it is. Okay, so in general, you will draw something like this. Okay, this is a general form, a standard form. Hi, sir, I am a student of diploma. क्या बात है, wonderful. So that's how you can do the RTD for MFR and PFR in parallel. I hope these things are clear to everyone. Clear to everyone? Any doubt?
Just give me a minute. Okay, now let's talk about the RTD for MFR in series. तो वो अलग से बात करेंगे हम बाद में, ठीक है। अभी एक और बात डिस्कस करते हैं, नॉन आइडियल रिएक्टर मॉडल्स। आपने पढ़ा होगा द वेरी फर्स्ट लेक्चर, टू डिजाइन अ केमिकल रिएक्टर वी नीड द नॉलेज ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स, कॉन्टैक्टिंग पैटर्न एंड परफॉर्मेंस इक्वेशन। कॉन्टैक्टिंग पैटर्न में ही आपका ये नॉन आइडियल रिएक्टर का पार्ट आता है, एंड इफ द रिएक्टर इज नॉन आइडियल तो वी नीड एडिशनल नॉलेज ऑफ आरटीडी एनालिसिस, मिक्सिंग प्रोफाइल्स एंड नॉन आइडियल रिएक्टर मॉडल्स। तो नॉन आइडियल रिएक्टर मॉडल्स आपको आइडिया होगा आई गेस, just like you use some models in mass transfer to design the equipments like McKinley method, distillation sequencing method, Ponson-Everett method for the designing of distillation column. Similarly, when we talk about the non-ideal reactor, so we have several models. So there are basically three models in non-ideal reactors. One is zero parameter model. Other one is one parameter model, or you can say single parameter model. And third is two parameter model. And here, when we talk about the one parameter, zero parameter model, so here you know there are two. One is segregation model, and second is complete mixing model, or you can say maximum mixedness model. वन पैरामीटर में आपके दो मॉडल आ जाते हैं. One is Tankin series model, and second is dispersion model. आपने आई होप ये सब किए होंगे, ठीक है। तो इसमें हम जीरो पैरामीटर मॉडल की बात कर लेते हैं पहले. इसमें एक है आपका कंप्लीट मिक्सिंग मॉडल और मैक्सिमम मिक्स टेस्ट मॉडल, विच ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसका रिजल्ट एनालिसिस इन मल्टीपल रिएक्टर सिस्टम, आपको याद होगा अर्ली मिक्सिंग लेट मिक्सिंग कॉन्सेप्ट फॉर टू गेट द हाई कन्वर्जन based on the order of reaction. Okay, so here today we will talk about the segregation model. तो segregation model क्या है? This is very basic model used for designing of non-ideal MFRs. It suggests that suppose if we have a MFR and you are introducing a feed, and here we are supposed to get the product. Okay, so the idea is at inside the reactor,
ideal MFR means perfect mixing. Non-ideal MFR means obviously perfect mixing will not be there. So ये क्या suggest करता है? Segregation model suggests that break down the entire reaction mixture inside the tank in different globules. ठीक है, जैसे लाइट में आप जब स्टडी करते हो तो पार्टिकल्स को आप फोटोन बोलते हो, यहाँ पे आप ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को ग्लोब्यूल्स बोल रहे हो. एंड इट सेज सेग्रीगेशन मॉडल that different globules in segregation model. Okay, different globules will have different residence time. But inside a globule, all molecules will have same residence time. Okay. Now next, you can understand in this. If different globules have different residence time, and inside a globule, all molecules will have the same residence time. So obviously, all different globules will have different conversion as well, because residence time is equal to reaction time. So if think like this, one globule is spending 4 minutes, a second globule is spending 6 minutes. So the first globule spending only 4 minutes means participated in the reaction only for 4 minutes. So it will have some conversion. But the second globule spent 6 minutes, so it has participated in the reaction in for 6 minutes. So it will have the higher conversion. Okay. तो when different conversion is there, तो यहाँ पे जो आपका mean conversion होता है, हमें वो calculate करने की help मिलती है, mean conversion. Or that means XA bar is equal to integration from 0 to infinite of XA into ET dt. आई होप ये आपको क्लियर होगा. ठीक है, ये आपका मीन कन्वर्जन होता है. That's how you can calculate, just like the mean residence time. T bar, it was T into ET dt. Here XA bar is XA into ET dt. This is simple segregation model. अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, आपके पास x से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट ऑफ एक्स ए इंटू ई टी डी टी. अगर आपको ई कर्व दिया तो आप उसके ई कर्व से ई टी निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ टाइम. एंड फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट एक्स ए इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड यू कैन सॉल्व. अगर आपको सी कर्व दिया है तो यू नो दैट ई टी यू कैन पुट इन टर्म्स ऑफ सी टी डी टी. तो ये बन जाता है आपका इक्वेशन, रिफॉर्म हो जाता है एज एक्स ए इंटू सी टी डी टी over integration from 0 to infinite of ct dt. Okay, so that's how you can calculate the mean conversion with the help of E curve or C curve. अब वो करते कैसे हैं, क्या है? देखो, एक सिंपल सा मेथड है, आप सबको पता होगा. अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको फिर से हाँ बता देता हूँ. सपोज ET आपको गिवन है फॉर एनी रिएक्टर. ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस वैल्यू इज लेट्स से 4, this is 7, and this is 12. This is unknown.
और आपसे इसमें पूछा है व्हाट विल बी द टी बार, और इसमें सपोज आपको रिएक्शन काइनेटिक्स दे दी -RA इज इक्वल टू 0.1 और लेट्स से 𝐾𝐶A², ओके। और आपसे पूछा है एक्स से बार बताओ क्या होगा इफ इट इज MFR, फॉर MFR सपोज। अगर MFR है तो ऑब्वियसली ये एक्सपोनेंशियल डिके होना चाहिए था, बट हम अब एक सिंपल आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। या फिर MFR हटा दो, एनी फ्लो रिएक्टर, सपोज फॉर सम फ्लो रिएक्टर, ठीक है, बिकॉज सेग्रीगेशन मॉडल की इक्वेशन आप किसी भी रिएक्टर के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो सिंपल डेटा आपको डेटा से क्लियर है। ई कर्व से पहले हम ईटी निकालते हैं, ईटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब आपको अगर ईटी फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि टी बार इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट टी इंटू ई टी डी टी। एक्स बार इज इक्वल टू भी ऐसा ही कुछ होता है। तो ईटी तो आपको चाहिए, ये आप समझ सकते हो कि कैसे निकलेगा ईटी, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे आपको कर्व गिवन है, पहले उसे आप देख लो। फॉर द टाइम इंटरवल बिटवीन 4 to 9 7, जो आपका कर्व है वो ये हो जाएगा, हाँ, लीनियर प्रोफाइल। और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वैल्यू इज 4,0, दिस वैल्यू इज 7, अननोन। तो पहले तो इस अननोन की वैल्यू निकालो आप क्या है। तो आप, वी नो दैट एरिया ऑफ ई कर्व इज ऑलवेज 1, टोटल एरिया ऑफ ई कर्व इज 1। तो यहाँ आप देखो ये जो ई कर्व है, इट इज काइंड ऑफ अ ट्राइंगल। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस, दैट इज 12 - 4 इंटू हाइट, क्वेश्चन मार्क -0, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाती है आपकी 12 - 4 8, 8/2 4, 1/4। तो ये वैल्यू आपकी 1/4 के इक्वल आएगी, जिसे आप ई मैक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लेट से के की वैल्यू आपको गिवन है 4, तो -R इक्वल टू 4 CA² है सपोज। देन और CA0 भी आपको गिवन है, CA0 तो चाहिए होगा ना, सपोज वो गिवन है आपको 10 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे पहले आप क्या करो, देखो टी बार है which is integration from 0 to infinite of t into et dt. Now here 0 means 4, infinite means 12. But here if you look between time 4 to 7, the curve has some slope, and between 7 to 12 curve has different slope. तो कर्व की शेप चेंज हो रही है, नेचर चेंज हो रहा है। तो कैन आई स्प्लिट दिस इक्वेशन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 7 for t into e1 t dt, and then integration from 7 to 12 of t into e2 t dt, है ना। तो यहाँ से आपका E1 t आ जाएगा। And you know what is the equation of a straight line connecting the 2 points? अरे पता होगा ना यार, कैसी बातें कर रहे हो। Equation of a straight line connecting 2 points. Y minus y1 equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 times of x minus x1, यही होता है ना। तो यहाँ पे y1 की जगह, y की जगह E1 t आ जाएगा, y1 की जगह 0 आ गया। लेट्स से दिस इज x1 कॉमा y1 एंड दिस इज x2 कॉमा y2। y2 की वैल्यू आ गई आपकी 1/4।
y2 minus y1, that is 1 by 4 minus 0 over x2 minus x1 into x minus x1. x की जगह t आ गया, t x1 की जगह 4 आ गया। तो यहाँ से आप देखो आपका इवन t आ जाता है 1/12 times of t minus 4. Simple. Similarly, you can calculate E2. So you can see for the time between 7 to 12, the graph is something like this, where this point is 12 comma 0 and this point is 7 comma 1 by 4. Okay. For simplification, let's say this is x1 comma y1, this is x2 comma y2. So e to t will be e to t minus y2 y1, this is 0, equal to y2 minus y1, x2 minus x1, x minus x1. तो यहाँ से आपका e to t आ जाएगा 1/7 minus 5, 1 by 20, और यहाँ माइनस का 1 by 20 आएगा और ये हो गया t minus 12, जिसे आप 12 minus t upon 20 भी बोल सकते हो, which is valid only for this time range. Similarly, even t is valid only for this time range. तो even t आ गया, e to t आ गया, तब आप t बार निकाल सकते हो. Integration from 4 to 7 of t into even t, which is t minus 4 upon 12. Plus integration from 7 to 12 of t into e to t, which is 12 minus t upon 20. So after solving this, you guys will get t bar. जो भी वैल्यू आएगी वो आप चेक कर लेना. Similarly, x से बार के लिए हो जाएगा. Integration from 4 to 7 and then 7 to 12. x even e2 आप निकाल चुके हो और x से क्या होगा यहाँ पे आपको पता है. For second order reaction, x is equal to होता है 𝐾𝐶A0t upon 1 plus 𝐾𝐶A0t. ओके, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. वहाँ पे अगर आप वैल्यूज देखो तो k की वैल्यू 4 है, x CA0 की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू टी अपॉन 1 प्लस 40 इंटू टी. तो ये वैल्यू यहाँ रख के आप x से बार भी निकाल सकते हो. सिंपल. सी हाउ इजी इट इज. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रैंकिन सीरीज मॉडल की. जस्ट गिव मी अ सेकंड. हो गया.
देखो टैंक इन सीरीज मॉडल हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ CSTR इन सीरीज रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजायर्ड कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने ट्रेसर इंट्रोड्यूस किया, at time t0 with the C0 constant when it will leaving path having space time tau 1, tau 2, tau 3 and so on up to tau n. So concentration leaving the first MFR will be C1T. Then it's C1T enter in second MFR. तो second C MFR से जो लीव करेगा वो C2T होगा. It will enter in third and third से जो लीव करेगा वो C3T होगा and so on. ठीक है, इसमें आप फिर जब फाइंड आउट करोगे तो अल्टीमेटली आपका जो CNT आता है उसकी इक्वेशन आ जाएगी, उसकी हेल्प से फिर आप ENT निकाल लेते हो। ठीक है, ये सब हमने क्लास में किया था, डेरिवेशंस प्रॉपर कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, अरे किया होगा ना आप लोगों ने, याद नहीं है क्या, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेसर लीविंग द NH रिएक्टर क्या आती है? यहाँ पे हम एजम्पशन लेके चलते हैं ऑल MFR हैज सेम रेजिडेंस टाइम और यू कैन से आर आइडेंटिकल। उन सभी का स्पेस टाइम क्या हो जाता है, टो आई। एंड यू नो दस ओवरऑल स्पेस टाइम क्या हो जाएगा आपका, टो, दैट विल बी इक्वल टू n इंटू टो आई। ये हम मल्टीपल रिएक्टर इन सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है कैसे होता है कैसे नहीं होता। ठीक है, तो CNT की जो इक्वेशन आती है आपको याद होगा कुछ ऐसी आती थी, n अपॉन टो होल पावर n मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर माइनस n इंटू t डिवाइडेड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल। यहाँ पे आप n की वैल्यू अलग अलग नंबर ऑफ MFR इन सीरीज की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। और CNT से जब आप ENT निकालते थे तो ENT की वैल्यू कुछ ऐसे आती थी, वो भी आपको याद होगा, n इंटू n अपॉन टॉ पावर n मल्टीप्लाई बाय t टू द पावर n माइनस वन इंटू e टू द पावर माइनस nt अपॉन टॉ डिवाइडेड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल। ये CNT अपॉन C0 की इक्वेशन है, सेम ही तो लिख दी मैंने। Just a minute, guys. Let me check. How is it possible? I think कुछ just give me a minute. CNT की क्वेश्चन
देखो गाइस, ये है इक्वेशन आपके सामने फॉर एमएफआर इन सीरीज। ये हमने क्लास में किया था। ठीक है, आपके सामने मैं इक्वेशंस दिखा रहा हूँ। So let's say we have multiple MFR in series, like three MFR here, tau 1, tau 2, tau 3 are the space time. ओवरऑल मीन रेजिडेंस टाइम या ओवरऑल स्पेस टाइम हो जाएगा n इंटू टो आई। तो यहाँ पे हमने जब फर्स्ट एमएफआर पे मोल बैलेंस किया, वहां से हमें C1T मिला था, फिर E1T मिला था। सेकेंड एमएफआर पे मोल बैलेंस किया हमने, तो वहां से हमें C2T आया था, उससे E2T आया था। थर्ड एमएफआर पे हमने मोल बैलेंस किया था, उससे हमें C3T की इक्वेशन मिली थी एंड E3T की इक्वेशन मिली थी। सेम हमने फोर्थ और फिफ्थ के लिए भी किया था। तो अल्टीमेटली वो आप यहाँ पे देख सकते हो बाद में। ओके, तो इन जनरल जो फाइनल इक्वेशन आई थी CNT की, वो ये थी, C0 इंटू T अपॉन टो आई पावर n -1। वैसे अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ये भी आप समझ सकते हो, टो इक्वल टू n इंटू टो आई होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो, 1 अपॉन टो आई की वैल्यू हो जाती है T अपॉन टो आई की वैल्यू हो जाती है, एक मिनट, तो यहाँ से टो आई इक्वल टू हो जाएगा टो अपॉन एन। सो टी अपॉन टो आई की वैल्यू हो जाएगी एन इंटू टी अपॉन टो। ओके, एनीवेज, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ nth प्रेशर आ गई, विच इज लीविंग द nth एमएफआर। फिर इसकी हेल्प से हमने ईएनटी निकाला था, वो ये इक्वेशन थी। यस, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन में हटा देता हूँ। कुछ यहाँ हमने मिस्टेक कर दी है, तो आई की फॉर्म में लिख लेते हैं, वो मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दी। अब यहाँ पे जो मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, वो ये है। तो इससे बेनिफिट क्या है, जब आप आरटीडी फॉर एमएफआर इन सीरीज की बात करते हो, तो वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, इसका जब आप आरटीडी देखोगे फॉर एमएफआर इन सीरीज, क्वेश्चंस मैंने आपको बता दी। इसकी जब आरटीडी प्रोफाइल आप बनाते हो, देखो वो कुछ ऐसे बनता है। यस, suppose you know when there was only one MFR, it was exponentially decreasing when n was equal to 1. Now if you increase the number of reactors in series, identical size reactors, तो उसकी प्रोफाइल कुछ इस तरह से चेंज होगी। Let's say this is for n equal to 5. As you know, n MFR in series act like a PFR. तो आप समझ सकते हो, अगर मेरे पास इनफाइनाइट एमएफआर सीरीज में है, तो वो पीएफआर की तरह, आइडियल पीएफआर की तरह एक्ट करेगा। तो उसके इसमें क्या होगा, पल्स इनपुट जो आपने भेजा है एज इट इज आउटलेट में मिल जाएगा आफ्टर टाइम टॉ, ओवरऑल स्पेस टाइम। ठीक है, फर्दर इसमें अब आप इंक्रीज करो तो आपकी प्रोफाइल कुछ ऐसे बनती है। लेट्स से दिस इज फॉर n इक्वल टू 10, और ये आप रेड से देख सकते हो, ऐसा ही हमने प्रोफाइल बनाया था जनरल आरटीडी प्रोफाइल, कुछ इसी शेप में था। फर्दर इफ यू इंक्रीज
the number of reactors, so it will be like this. ठीक है, उसके आगे फर्दर इंक्रीज करते हो वो आइडियल पल्स हो जाएगी और ये टाइम हो जाएगा टॉप। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है फ्रॉम अ कोड ऑफ मैटलैब। तो देख सकते हो आप, जब हमारे दो CSTR सीरीज में है, ओवरऑल स्पेस टाइम हमने 7 फिक्स कर दिया, तो ये प्रोफाइल कुछ इस तरह से आएगी, जनरल RTD प्रोफाइल। ठीक है, अब हमने MFR को इंक्रीज करके 9 कर दिया, तो यू कैन सी इट विल शिफ्ट, the spreadness of the curve will also reduce. You can see the spreadness reduce हो रही है, means variance reduce हो रहा है। फर्दर आपने n की वैल्यू को सपोज अगर 25 किया, जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो आप देख सकते हो और कम हो गई। ओवरऑल स्पेस टाइम हमने 7 लिया, यहाँ देख सकते हो n इक्वल, ये प्रोफाइल ऑलमोस्ट 7 पे आपका ये पीक आ रही है एवरेज, जस्ट लाइक आइडियल PFR में होता है, पल्स एज इट इज ट्रांसपोर्ट हो जाती है विदाउट एनी चेंजेस। So that's how you can understand the RTD for Tankin series. Okay, तो आई होप इट इज क्लियर। और टैंकिन सीरीज में आपको जो एक लास्ट चीज याद होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए, इसे सिंगल पैरामीटर मॉडल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इन टैंकिन सीरीज मॉडल जो आपका n आता है, नंबर ऑफ MFRs नीडेड इन सीरीज, वो आता है 1/σθ स्क्वायर के इक्वल, where sigma theta square is your dimensionless variance, or you can say unitless variance, or you also known as normalized variance. Okay, so that's all for the day guys। यहाँ पे हमारा नॉन आइडियल रिएक्टर का पार्ट भी कंप्लीट होता है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। बाकी हम नेक्स्ट वीक से फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्विक रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पर फॉर द फ्री लर्नर्स। उसका एक प्रॉपर अनाउंसमेंट आए हम मेंशन करेंगे, तो स्टे ट्यून। तो टिल देन